تو جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں بابا جی کے پاس، درویش صاحب کے پاس. تو ان سے آپ کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں. بابا جی آپ کے دیکھنے والوں کے لیے کچھ کہہ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. وہ سوال کرنا جڑا کرنا نشائیاں دا. ہاں جی. تو ناظرین آج نا دراصل ایک مسئلہ بن گیا. میں گیا ایک درویش کے پاس، تو میں نے جب دیکھا تو وہاں پہ نشہ چل رہا تھا، بھنگ بھی چل رہی تھی اور چرس بھی چل رہی تھی. تو میں نے بابا جی سے آگے یہ سوال کیا ہے کہ بابا جی، ان سے میں نے کہا ہے کہ جی یہ نشہ حرام ہے، آپ دربار پہ بیٹھ کے یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ نشہ جو ہے نا یہ فقیروں اور درویشوں کا نشہ ہے. تو ہم بابا جی سے پوچھتے ہیں جی اگر درویشوں کا نشہ ہے تو آپ تو یعنی کہ اولاد نبی ہیں، تو پھر آپ کا کنڈی ڈنڈا کہاں ہے؟ جی بابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کفر کے نظام میں یہ ساری چیزیں نشے وشے چلتے تھے، لیکن ایک وقت آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور جو حضور فرما دیں وہ پکی سند ہے تمام کائنات کے لیے. آنے والوں کے لیے جو حضور کے امتی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان پر واجب ہو جاتی ہے وہ بات کہ وہ کام نہ کریں. اور یہ جب حضور نے اس کو حکم دیا، منع فرمایا، تو بہت سارے لوگوں کے پاس شراب کے مٹکے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا کعبہ شریف میں، مکے میں. تو وہ سارے ڈھیل دیے گئے، سب جو ہے نا گرا دیے گئے زمین پر، فرش پر، اور وہ نالیوں میں چلے گئے، ختم ہو گئے. تو اس کے بعد یہ کسی ولی، کسی درویش، کسی تبع تابعین کے لیے یہ بالکل اس کی ممانعت ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے. جس کو حضور نے منع کر دیا تو وہ پکا امتیوں کے لیے قیامت تک کے لیے منع ہے. اور وہ اس کے اثرات جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم، تو آپ کی جو حضرت ابوبکر صدیق اکبر، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی مرتضیٰ، تو یہ پورے بر اعظم پر ان کی حکومت تھی. تو انہی اعمال کی وجہ سے آج ہم عذاب میں مبتلا ہیں. اللہ معاف فرمائے. آج ہم مالی، جانی، بدنی، روحانی تمام پریشانیوں میں مبتلا ہیں. تو اس کو چھوڑ کر، نشہ تو اللہ رسول کا نام ہے. وہ ایک قول ہے، ساکیا میں ایسی پلا کہ میں خود بنوں، بات مطلب کی کہوں گا ہوش میں آنے کے بعد. تو یہ جو ساکی کا نشہ ہے نا، جو سرکار کے نام کا نشہ ہے، اللہ رسول کے نام کا نشہ ہے، یہ سب سے بڑا نشہ ہے. تو اس لیے اس کو میں سختی سے کنڈم کرتا ہوں، منع کرتا ہوں. حضور کے امتیوں کے لیے یہ وارننگ ہے کہ وہ یہ منشیات، نشہ وغیرہ سے بچیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسلام کال کا نام ہی نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے. اور جو علم تو بہت ہے لوگوں کے پاس، بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں،
लेकिन अमल का फुकदान है, अमल नहीं है। और जो हम इन तमाम आफात और चीज़ों में मुब्तला हैं, वो किसी किस्म की भी हैं, वो इसकी वजह से हैं। और अल्लाह ताला हमें इन तमाम आफात से महफूज फरमाए और उम्मत मुसलमान को जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, और ये 1400 साल 1450 साल पहले कुरान की सूरह मोहम्मद 47 है, 47वीं आयत है कुरान के। और 47 का मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने ये हमें गिफ्ट दिया है और हमें सब लोगों को इसकी हिफाजत करनी चाहिए और ज़ुबानी नहीं अमली तौर पर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और बस जिसको नशा चाहिए वो कलमा शरीफ का विर्द करे, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजे, उसके लिए सबसे बड़ा नशा यही है। और बाकी ये जो रवायती खानगाहों पर वहाँ जाके आप कुरान पढ़ें, वहाँ दरूद पढ़ें, वहाँ कलमा शरीफ पढ़ें और उनके लिए मरशद के लिए दुआ करें। अपने वो दुआ असल में आप उनके लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी पर दुआ करेंगे तो उसका रिटर्न अल्लाह की ज़ात आपको भी देगा, कोई ना कोई पहुंच जाएगा दुआ करने के लिए। और ये जो चिराग जलते हैं, जब तक अंदर चिराग ना हो, कलम में चिराग ना हो, बाहर उसका रोशनी नहीं निकलती। और ये सीना बसीना इल्म है, नूर का इल्म है। ये विर्द वजीफ़ों से चलों से नहीं मिलता, ये किसी के दर्स, किसी की मर्द की खिदमत करने से मिलता है। तो आप कोई उस्ताद कामल ढूंढे, जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े प्रोफेसर, जो 4 दिन की ज़िंदगी है, तो रोज़ी के लिए आप बड़े बड़े पखंड करते हैं, बड़ी ट्यूशनें रखते हैं, तो आपको ये तौफीक नहीं होती कि आप कोई जिससे फैज़ आपका अल्लाह ताला ने देना है तो वो ये काम करे। तो हुज़ूर दाता साहब की कशफुल मजदूर किताब है, उसमें हक़ की तलाश के लिए रात को आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह जिसके पास मेरा फैज़ है, अल्लाह मुझे उसके पास पहुंचा दे। वो फिर कोई अल्लाह ताला सवाब पैदा कर देगा। आप वो आज कल हम पीर ऐसे ही पकड़ लेते हैं जो जिसके पास आपका फैज़ भी नहीं है और उसके पीछे भागते रहते हैं, तो वो फिर बात नहीं बनती। जो आपका उस्ताद कामल है, जब आप उसके पास पहुंचेंगे तो वो आपको जो बताएगा उससे फिर आपको फैज़ मिलेगा। तो ये अल्लाह का करम है। और खिदमत खलक करें, जो राह खुदा में दे डाला वो माल फ़कत तेरा है, बाकी के लिए क्यों कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। तो लोग आजकल वो प्लाजे, तो वो फलाने स्टेटस, झूठे स्टेटस वालों की बड़ी शान है और झूठे लोगों के पास आप फिरते हैं, हक़ वालों के आप मुतलाशी नहीं है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी तौफीक दे कि कोई हक़ वाला आपको मिल जाए। और वो झूठी अना के पीछे मत खर्चा करें कि ये जी वो मेरा प्यो कर दे, भी तेरे जो हालात ने वो तू वो मुताबिक कर। जैसे तुम्हारे वसाइल अल्लाह ने पैदा किए उनके मुताबिक, अल्लाह को पता है। और इसकी बड़ी मिसालें हैं। जब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा माल लेके आ गए, उमर ख़त्ताब लेके आ गए, उस्मान गनी लेके आए, 300 ऊँट और पता नहीं क्या कुछ। और एक आशिक था जो हुज़ूर नबी अकरम, उसने मज़दूरी की और वो सारा दिन मज़दूरी करता रहा और उसने बाज़ार से चीज़ें ख़रीदी। तो मस्जिद नबी में सामान का ढेर लगा हुआ था। तो सरकार ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें सारे माल के ऊपर रख दी, क्योंकि वो मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से कमाई गई थी।
किसी को विरसे में मिला, किसी को किस तरह मिला, किसी को किस तरह मिला। तो ये तजारत बड़ी अच्छी तजारत है, लेकिन आज लोग दुनियावी चक्रों में गाफिल हुए हैं। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। सबसे पहले जो आपका पीर है वो आपका माँ बाप है, वालिदैन है। उनको छोड़कर, उनको तकलीफ़ में छोड़कर ये जो है ना, आप वो पीर शीर के पीछे ना फिरें। बाद में ये वो अल्लाह ने इसके लिए बड़ी मिसालें हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी जहाद के लिए तैयार हो गया, तो सरकार ने पूछा तुम्हारे घर के क्या हालात हैं? उन्होंने कहा जी मेरा बाप ज़ईफ़ है। आपने फरमाया कि जाओ उसकी खिदमत करो। तो ये सरकार का हुक्म है, ये कोई मेरी बात नहीं है। तो माँ बाप की सबसे पहले खिदमत करें, और उसके बाद वो जो कोई अगर आपका उसके पास फैज़ है, अगर आप बदले नहीं हैं, आपकी आंखों में हया नहीं आई है, आप अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करते हैं, वो इलेक्शन वालों की तरह हाँ हाँ मिलाते हैं, तो फिर वो कोई मामला नहीं है, वो सारा दौड़ी है। तो ये चिराग अंदर जलाएं और ये फ़िका परस्ती और इन चीज़ों से दूर रहें। वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फ़ैसला कर लेंगे कौन अच्छा है, कौन क्या है, कौन, क्योंकि शफाअत तो सरकार ने करनी है। तो इसलिए आप इस बात पर यकीन रखें कि वो जो फ़ैसला करेंगे आखिर वही फ़ैसला होगा। दुनिया आखिरत में हमारे लिए बेहतर फ़ैसला वही है। तो बाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी सरकार, उनके बाद आने वालों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद बाला फरमाए। और हम भी अल्लाह ताला से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी कब्रों पर भी अल्लाह ताला रहमतें फरमाए। और जो लोग इधर आज इस खलूस से आए हैं, उनके जो भी मामलात हैं, दीनी हैं, दुनियावी हैं, जो भी है, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर सवाब पैदा करे, ताकि उनकी माली मुश्किलात दूर हों, उनकी रूहानी मुश्किलात दूर हों, उनकी दुनियावी मुश्किलात दूर हों, उनके अंदर के कलूब की मुश्किलात दूर हों। जो जंग लगा हुआ है वो वाश हो जाए, वो साफ़ हो जाए। क्यों दिल बबुनियाद खुदाए अकबर अस्त, काबा बबुनियाद खलील आज़र अस्त, दिल बबुनियाद खुदाए अकबर अस्त, वज़ादारा यक काबा यक दिल बेहतर अस्त। तो जो मोमन का दिल है ना, वो 1000 काबों से तगड़ा है। ये वो काबे वाले मिल जाए ना, जब आप जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए, तो फिर बात बनती है, नहीं तो बिल्डिंगां ही देख के बंदा आ जाता है। तो वो बिल्डिंगों का भी रूहानी जगह है, उनका बिल्डिंगों का भी असर रहता है कुछ दिन, लेकिन उस तो बाद जेड़े छोड़े लादे ने वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनकी पनाह से महफूज रखे। तो कर करम करवा करम, दोनों जहाँ में रख शर्म, सदका तू अपने करम दा, सदका कमाल दा, सदका तू अपने लुत्फ दा, सदका जमाल दा, सदका तू बीबी फातिमा दे नूरुल ऐन दा, कर दे मौला करम तू सदका हुसैन व हसन दा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।